Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Brothers with effect from 1st April 2016. So, commencement date is 1st April 2016. The company was incorporated on 1st August 2016. Parents here, company कब incorporate हुई? 1st August 2016. उसके बाद क्या बोला उन्होंने? The following information was available from the books of account which were closed on 31st March 2017. जब से उन्होंने बिजनेस लिया कब का डेट गिनने का, ओके? दे हैव कलेक्टेड अ डेट फ्रॉम 1st अप्रैल. उन्होंने बाद में बोला है कि इनकॉर्पोरेशन डेट क्या था? 1st अगस्त 2016. बिजनेस भले उन्होंने स्टार्ट किया 1st अक्टूबर से, बट उन्होंने ले लिया था ना. दे हैव टेकन द कंपनी फ्रॉम तेंदुलकर ब्रदर्स फ्रॉम विच डेट? 1st अप्रैल. तो 1st अप्रैल से 1st अक्टूबर तक, 1st अक्टूबर है ना? यस, 1st अगस्त, सॉरी, 1st अगस्त तक जो पीरियड है वो कौन सा पीरियड कहलाएगा? प्री. एंड अगस्त के बाद का क्या पीरियड रहेगा? टिल द नेक्स्ट मार्च पोस्ट. It is clear? So very first requirement we are supposed to find out time ratio. So let us find out time ratio. Sure. Very easy. Date of commencement, working note 1. Date of commencement. Time ratio. Date of commencement कौन सा था? 1st April 2016. Date of incorporation 1st August 2016. Date of year ending 31st March 2016. Am I right? Chalo. Now let us start. Okay, very good. Thank you. 2017. Chalo. Now we will start with April, May, June, July, August, September, October, November, December, Jan, February and March. Chalo. How many months from 1st April to August? August from 1st August it is started, so I will not take the August in pre-incorporation period. Rishi, come here. Come sit here. Come sit here. Go, chalo. Go there and sit there. So April, May, June, July we will take as a pre-incorporation period, but the later period we will take as a post-incorporation. Are you getting it? ये तो बहुत easy है. So many time it is run. So 1st August से 31st March तक का जो period है, that will be your post. So this will be your pre-incorporation, and this will be your post-incorporation. So these are how many months here? 4 months. How many months here? 8 months. So what is time ratio? 4:8. That will bring to how much? 1:2. Very easy it is. So first thing we have done, time ratio 1:2. We have found out time ratio. Now most of the problem, once we are done with the time ratio, most of the problem will require what? Sales ratio. So many expenses are apportioned or classified or divided on the basis of sales ratio. Any expenses related to sales, gross profit, everything is divided under which ratio? Sales ratio. So second working note, but obvious we are supposed to find out sales ratio. Okay, so let us begin with that. Working note 2, sales ratio. चलो सेल्स रेशियो के लिए क्या चाहिए हमको? सेल्स रेशियो की क्या चाहिए हमको? बातें नहीं ध्यान यहाँ पर. सेल्स रेशियो के लिए क्या चाहिए? Do you have pre-incorporation and post-incorporation sales, or they have given any information about that? What information they have given about the sales? Let us read the information. They have said yes. Per month during pre-incorporation period, by total sales for the year were 35 lakhs. Okay, so total how much sales was there? 35 lakh. But out of that 2.5, that is 2,50,000 per month was pre-incorporation period. So balance will be in the post-incorporation. So let us find out sales ratio like this. See how many total sales were there? 35 lakh total sales, right? So now we are deciding here pre and post. How many months are there in pre-period? 4 months. How many are there in 8 months? So they have said it was 2,50,000 per month in post-incorporation. So I will multiply 2,50,000 with 4 months. Yes. Question have said that in pre-incorporation period. यहाँ पर ध्यान दीजिए, question में बोला गया है कि pre-incorporation period में sales were 2,50,000 per month. So 2,50,000 per month. How many months were there in pre-period? 4 months. So 2,50,000
multiplied by 4 will give you the pre-incorporation sales. Yes, everyone? Yes, Nelia? How much is the amount? Can you get me the amount? 2,50,000 into 4? 10 lakhs. Okay. So 10 lakhs will go in this. Out of 35 lakh, 10 lakh will go here in pre-incorporation. So balance will go in which period? 24. Post. So it will go in post. So 25 lakh post sales. Okay, post incorporation period sales. This is pre-incorporation period sale. So what will be the ratio? It will be 10 is to 25. 10 is to 25 means if we will make it compressed form, what will it be? 2 is to 5. So that is your sales ratio. Is it clear? Chalo. So this working note is done. Another information is given about office rent. They have given certain information. Sales ratio is clear? Yes, Muskan. Sales ratio. Kitna ratio sales ratio? 5. 2 is to 5. Matlab how much for first period and how much for second period? How we are going to divide? कैसे 1000 को divide करो? 1000 in the pre and post period. Can you divide? So 1000 multiplied by what? If I want to divide 1000 in the ratio of 2 is to 5, how will you divide? Pre के लिए. Yes, that's what I am. So it is 2 by 7, 5 by 7. That you know na? How to remove ratio? 2 by 7 and 5 by 7. ये कितना है? 1 by 3 and 2 by 3. Okay? Is it clear? चलो. So let us begin with the problem. Let's draw the format. आता है आपका format? Particular, total, basis of allocation, pre-period and post-period. Statement of profit and loss for the year ended 31st March 2017. In the books of कौन सा है? Sachin Limited. Is it clear? In the books of Sachin Limited, make the format. Office rent का जो है ना, working note जैसे वो आएगा ना, office rent also have working note. That the moment it will come, we will make the working note. Okay, everyone? Yeah, these are some basic things which we need obviously. So that we have removed office working, office rent or whatever expenses. If they have sent something else, specific information is given. Kya given? Which kind of information? Specific. If specific information is given, we are supposed to do the calculation basis on that information. So that calculation will require the working note later period. Okay? Shall I begin with this format and this? Very easy. Chalo, start करते हैं. Sachin Limited. In the books of Sachin Limited, statement of profit and loss for the year ended. Which year ended? 31st March 2017. We'll start with income and we'll deduct expenses from that and we will get the net profit. In your question, you are given with the information about gross profit and expenses. So we'll classify that into pre-incorporation and post-incorporation period. Okay, all the information. So first we'll start with income, that is your gross profit. Income में सबसे पहले क्या आएगा? Gross profit. Can you get me the amount of gross profit? What is the amount of gross profit? 5 lakh, 3,50,000. So I'm writing here in total column 3,50,000. So which basis gross profit will be? Sales. Always remember gross profit will be divided on the basis of sales because it is normally attained through the selling of articles or whatever goods. That's why it has to be divided in the ratio of sales. Gross profit on the ratio of sales. Sales ratio we have already found out. Yes, what is the sales ratio? 2 is to 5. So I'm writing here sales and नीचे लिख रही हूँ 2 gem 5. So 2 is to 5. So can you get me the amount? 2 by 7 and 5 by 7. 1 lakh, 10 lakh 25,000. 35, 3,50,000 10 lakh कैसे आ सकता है?
1 lakh. Can you get me or I'll have to calculate? वाह, कैलकुलेटर दे रहे हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर रहे बच्चों। तो चलो 3,50,000 multiply with 2 divide by 7 will give you 1 lakh. How much? 1 lakh. तो बाकी का कितना होगा? 2,50,000 will go in post period. Okay everyone? चलो डन। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है? सब लोग इसमें कुछ प्रॉब्लम है? कहाँ है तुम्हारा ध्यान? आजू बाजू वाले के पास बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये वर्किंग नोट बाद में लिखना। आई विल गिव टाइम, जस्ट रिलैक्स, फर्स्ट लर्न द प्रॉब्लम, आई विल गिव टाइम टू कॉपी। मुझे कैलकुलेशंस दो, विद इन अ फ्यू मिनट्स वी विल बी ओवर एंड यू कॉपी इट आफ्टरवर्ड्स। ओके, पे अटेंशन ओवर हियर। यस एवरीवन, कैन यू सी दिस? कैन यू सी हियर? कैन यू सी मी? कैन यू सी द प्रॉब्लम? सो प्लीज पे अटेंशन हियर, nowhere else. Okay, चलो। So next thing is given, gross profit we have already divided, that's all. That much income is given. Nothing else is mentioned in the credit side. और कोई information है income का question में? Yes, Dilon, कोई और information है question में? Gross profit के अलावा income side, credit side or any other information is given? No. So we shall just and start with here only that this much income is there. Okay, so total income will be same as it is. I'll copy 3,50,000, 1 lakh and 2,50,000. Chalo. Now we shall deduct the expenses. What we shall deduct? What we shall deduct? Expenses. Flavia क्या? Which expenses? मुझे नहीं पता। Question में क्या दिया है? The expenses which are given in the question. That expenses will deduct. Simple. Okay. चलो. Let us start. Less expenses one by one. चलो, फर्स्ट एक्सपेंसेस क्या दिया है? ऑफिस सैलरीज। सैलरीज मंथली मिलता है, क्वार्टरली कभी कभी किसी को मिलता है, किसी किसी को ईयरली भी मिल सकता है, जिसका कैपेसिटी। बट द नॉर्मल ट्रेंड इज टू गेट द सैलरी मंथली। सो ऑब्वियसली व्हेन मंथ इज इन्वॉल्व, टाइम इज इन्वॉल्व, यस टाइम फैक्टर इज इन्वॉल्व। सो ऑफिस सैलरीज ऋषि कौन से रेशियो में जाना चाहिए? टाइम रेशियो या सेल्स रेशियो? Because it is based on time period, that's why office salary will go on which ratio, Sikant? Time ratio. Chalo, what is the total amount? Stop writing everyone, just pay attention over here. How much? कुछ information दिया उन्होंने? Okay, see now, pay attention here. If information is given, that means you cannot follow the stereotype ratio pattern. मतलब normally अगर कोई information नहीं दिया है तो वो कौन से रेशियो में जाएगा? टाइम रेशियो में। कौन से रेशियो में जाएगा? क्रिजेंट टाइम रेशियो में। बट सिंस द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन इज गिवन, इट विल बी डिवाइडेड स्पेसिफिकली। जैसे आप पानीपुरी वाले को बोलते नहीं हो तब तक वो नॉर्मल पानीपुरी देता है आपको, फिर आप बोलते हो कि मुझे तीखा चाहिए, क्या और क्या चाहिए? मीठा चाहिए, मीडियम चाहिए, देन ही विल चेंज अकॉर्डिंग टू यू, राइट? यस और नो? द सेम वे, if the question says something else, you cannot follow the ratio pattern unless it is specific information is given. Specific information is given means you have to put the working note. Is it clear? Specific information, specific bifurcation. क्या? Specific information, specific bifurcation. You cannot just rely on the time ratio or sales ratio or anything. Stereotype ratio पे नहीं जाना, देखना है क्या बोला है। क्या बोला है उन्होंने ऑफिस सैलरी के लिए? हो क्या बोला है? सैलरीज इंक्लूड पार्टनर सैलरी। तो पार्टनर्स का जो सैलरी है वो ऑफिस सैलरीज में इंक्लूड है। पार्टनर्स मतलब क्या? ये मैंने पिछली बार बताया। पार्टनर्स कब होते हैं? देयर आर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, राइट? Which forms of organization you have learned in 12th? Sole trading concern, partnership firm, joint stock company, cooperative society, Hindu undivided family, business, HUF wala. Okay? So all these, out of this, in which form of organization there will be partners? Partnership. So partnership is a company, yes or no? Partnership is a company. Partnership is a firm. Partnerships is called what? Firm. When you incorporate into company, it is called joint stock company. So partner salary means which kind of salary it is? It is belonging to pre-period. Which period? Pre-period. तो कंपनी बनने के बाद पार्टनर्स रहते हैं, पार्टनरशिप फर्म जो है वो एंड हो जाती है। क्या एंड हो जाती है? पार्टनरशिप फर्म। और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? जॉइंट स्टॉक कंपनी में।
कंपनी में कन्वर्ट हो गया। कंपनी इनकॉर्पोरेशन मतलब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो गया, अब क्या चालू हो गया, कंपनी। दिस इज ऑलरेडी बीन टोल्ड टू यू इन द लास्ट क्वेश्चन ऑल्सो। सो पार्टनर सैलरी मीन्स कंपनी इज नॉट येट इनटू पिक्चर, अभी तक कंपनी पिक्चर में आई नहीं है, तब का सैलरी। तो कौन से पीरियड में जाना चाहिए, प्री में जाना चाहिए। वेरी गुड, कहाँ जाना चाहिए, प्री। बाकी का जो सैलरी है वो हम टाइम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इज इट क्लियर, यस एवरीवन। चलो, टोटल सैलरी, उसमें से पार्टनर्स का सैलरी जो है दैट बिलोंग्स टू प्री पीरियड, रिमेनिंग सैलरी इन द टाइम रेशियो। यस यस, आए हैं तो कुछ पढ़ के जाओ, ठीक है, आए हैं तो कुछ पढ़ के जाओ, आए हैं तो चाय पी के जाओ, ऐसे ही हम क्या बोलेंगे, आए हैं तो कुछ पढ़ के जाओ। चाय तो नहीं मिलेगा, कॉफी भी नहीं मिलेगा, तुमको सिर्फ पानी मिल सकता है यहाँ पे। पानी चाहिए, पानी पी के जाना, पढ़ के जाना। मेहमान आते तो बोलते ना खा के जाना, खाना खा के जाना, चाय पी के जाना। जब तुम लोग आओगे मैं बोलूंगी पानी पी के जाना और पढ़ के जाना। ओके, तो नाम क्या, क्रिजल ना, क्रिजल, पानी पी के जाना और पढ़ के जाना। कुछ तो सीख के ही जाना तुम आज, ठीक है। हाँ, और एक आगे है मेहमान, क्या नाम है आपका, नाम बोलिए, आपका नाम क्या है। हाँ मुझे बताइए, आप बताइए, वो नहीं बताइए, मेहमान अपना नाम खुद नहीं बता। जैसिका, आए हैं तो पानी पी के जाना और कुछ क्या, सीख के जाना, पढ़ के जाना, ठीक है। चलो यहाँ पर ऑफिस सैलरीज देखिए कैसे लिखने का। ऑफिस सैलरीज हमको आता है, उसका स्पेलिंग लिख दिया। ऑफिस सैलरी, वर्किंग नोट प्री, ऑफिस सैलरी, तो तुमको आता है लिखने के लिए, आता है ना ऑफिस सैलरी लिखने के लिए, क्या बात है। चलो वेरी गुड। इसके बाद हाउ मच सैलरी इज देयर, 1,35,000, ये भी लिखने आता है आपको, परफेक्ट। अब इसमें से ऐसे दो एरो बनाएंगे, क्या बनाएंगे, दो एरो। यहाँ पे रहेगा पार्टनर्स का सैलरी। पार्टनर्स का सैलरी क्या दिया हुआ है, अमाउंट सब लोग बोलेंगे, कितना सैलरी दिया है पार्टनर्स का, 30,000। चलो 30,000 यहाँ गया। अगर इस 1,35,000 में से मैंने 30,000 यहाँ पे लिखा तो बाकी का कहाँ पे लिखूंगी, अदर साइड, अदर एरो। हाउ मच इज रिमेनिंग, 1 लाख, बोलो 5,000, एम आई करेक्ट, वेरी गुड, मुझे आता है मैथ्स, वाओ। यहाँ पे मैं लिख दूं रिमेनिंग, चलो रिमेनिंग, ये कहाँ पे जाएगा, बिकॉज इट इज पार्टनर्स। पार्टनर्स हमेशा पार्टनरशिप फर्म में ही होते हैं, कंपनी में होते हैं नहीं, मतलब आपस में हो सकते हो लोग कि भाई तू मेरा पार्टनर है, तू मेरा पार्टनर, बट ऑन पेपर नहीं होती। इमोशनली होते हो सकते हैं, बट ऑन लीगल फॉर्म में पार्टनर्स दे आर शेयर होल्डर्स, व्हाट दे आर। सो पार्टनरशिप फॉर्म मतलब प्री पीरियड, इज इट क्लियर। कभी भी पार्टनर्स आया तो प्री पीरियड। सो आई एम राइटिंग हियर, इट विल गो टू प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड। चलो बाकी का किस में जाएगा, ये प्री में जाएगा, तो बाकी किस में जाएगा, पोस्ट में। लेकिन पोस्ट में भी पूरा पूरा जाएगा नहीं है, तो कैसे लिख दिया, कैसे बोल दिया आपने, पोस्ट, पोस्ट में कैसे जाएगा, पूरा पूरा पोस्ट में जाएगा, बोलो कौन से रेशियो में जाएगा फिर, वो टाइम रेशियो। तो ये बोलना गलत है कि ये इसमें से प्री में चला गया तो बाकी का पोस्ट में, नहीं, बाकी का भी दो डिवीजन होगा, प्री एंड पोस्ट। पहले था सैलरी, सैलरी में से हमने पार्टनर सैलरी निकाला, उसको किस में दिया, प्री में। बाकी जो बच गया उसको हम डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो में, प्री और पोस्ट में। तो इसका इसमें से भी एक एरो निकलेगा, कितने एरो निकलेंगे, दो एरो निकलेंगे, एक एरो यहाँ पर, एक एरो यहाँ पर। यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, प्री, और यहाँ पे क्या लिखूंगी, ओ वेरी गुड, और बीच में क्या लिखूंगी, टाइम रेशियो। Which ratio is this? Time ratio. How much time ratio? How many months are there? What is the time ratio? 4 and this. मतलब रेशियो क्या है, 1:2। चलो करेंगे 1:2, चलो करो। 35 लाख, 35,000, परफेक्ट। आपने किया, कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया आपने, आता है, बिना कैलकुलेटर कर लिया, वेरी गुड। तो बहुत स्मार्ट हो आप लोग, बिना कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आई सजेस्ट कि आप कैलकुलेटर लो, क्योंकि उस टाइम पे हम अंदर प्रेशर होते हैं, गलतियां कर सकते हैं। क्रिस्टन, गलतियां हो सकती है, हो जाती है, ओके, पर हमको नहीं करनी है, ठीक है। तो अगर सिर्फ लड़की के सामने आंसर देना है तो बिना कैलकुलेटर के दो, एग्जाम में के देना है तो कैलकुलेटर लेके, ओके, समझा। किसी को इंप्रेस करना है बिना कैलकुलेटर का आंसर दो, बट अगर तुम एग्जाम में लिख रहे हो तो एक बार फिर से कैलकुलेटर पे वेरीफाई करना, अपने आप पे भी ट्रस्ट नहीं करने का, ओके। सो हाउ मच, 25,000, 35,000 एंड
70,000. ओके डन एवरीवन. आगे जाऊं, अब मैं वहां पे डायरेक्टली चली जाऊं. हाँ चलो. सो ऑफिस सैलरीज आई एम राइटिंग योर स्पेसिफिक. क्या लिखूंगी मैं? पहले अमाउंट लिख देती हूँ. हाउ मच इज अमाउंट? 1,35,000. चलो 1,35,000. ओके कौन सा रेशियो में? नहीं स्पेसिफिक. क्या लिखोगे आप? वर्किंग नोट 3. चलो प्री में टोटली कितना जाएगा? 30 जाएगा प्लस 35. हाउ मच इट विल गो इन प्री पीरियड? 65,000. ओके 65,000. एंड बाकी का किस में जाएगा? पोस्ट में 70,000. इज इट क्लियर एवरीवन? स्पेसिफिक में हमने कौन सा इसमें दिया? वर्किंग नोट 3. इज इट क्लियर? हाँ खाया नहीं तुम लोगों ने खाना? हाँ जाओ बोलो जल्दी से. इज इट क्लियर? शनाई का नहीं हुआ क्लियर? फिर से बता दे, कोई बात नहीं. ये समझा तुमको? 1,35,000. ओके अच्छा कुछ और सुना? कुछ और मत सुना, कुछ और नहीं. चलो बहुत इजी है, कम से कम एक्सेप्ट तो कर लो कि इजी है. हाँ चलो नेक्स्ट है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस चलो ये तुम अगर होशियार हो तो बताओ. ट्रैवलिंग ओके. ऑफिस एक्सपेंसेस उसमें कुछ है क्या? इसमें कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन नहीं. ऑफिस एक्सपेंसेस में कुछ नहीं बोला है तो छोड़ दो उसको. मतलब ऐसे टाइम रेशियो में दे दो. कुछ नहीं बोला है तो कौन सा रेशियो? टाइम रेशियो. कुछ बोला है तो फिर वर्किंग नोट. Is it clear? So I am not going to spend a more amount of time on that. I am straight away writing in a time ratio and giving the bifurcation. Are you okay with that? Okay. So here office expenses amount बोलो फटाफट फटाफट बोलो. How much is the amount? हाँ? 45. सबका अलग अलग 45,000. Okay चलो. Which ratio I will write down here? Time ratio. कौन सा है time ratio? 1:2. 1:2 में कर दो. चलो 15:30 आ रहा है क्या? 15,000 30,000. ओके 15,000 and 30,000. चलो लेट्स गो ऑन अदर. लेट्स गो ऑन अदर आइटम. चलो ना कौन सा है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस जो है उसके बारे में भी उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दिया है. उन्होंने कहा है ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड्स 3,600 incurred by office staff and balance by. तो ऑफिस स्टाफ का कौन से रेशियो में जाएगा? ऑफिस का एक्सपेंसेस कौन से रेशियो में जाता? टाइम रेशियो. और सेल्स स्टाफ वाला कौन से रेशियो में जाएगा? सेल्स वाला सेल्स के रेशियो में, ऑफिस वाला टाइम रेशियो में. सो आई एम गोइंग टू बाइफरकेट हियर ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस दो में. आई एम गोइंग टू बाइफरकेट टू वेज. ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सबसे पहले मैं लिखूंगी ऑफिस. ऑफिस का कितना है? 3,600. बैलेंस कितना बचेगा लेविया? ऑफिस का 3,600 है तो बैलेंस कितना रहेगा सेल्स का? क्वेश्चन है ना आपके पास. व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस? 24,600. उसमें से 3,600 ऑफिस का है तो बाकी का कितना रहेगा? क्वेश्चन देखो और आंसर दो. टोटल एक्सपेंस कितना है? 24,600. टोटल एक्सपेंस कितना है? 24,600. यहाँ पे लिखती हूँ मैं 24,600. उसमें से ऑफिस का कितना? 3,600. तो बैलेंस कितना रहेगा? सेल्स वाला कितना रहेगा? 21,600. इज इट क्लियर? ओनली 21,000 बैलेंस. ओके मतलब माइनस सही से किया ना. चलो तो यहाँ पे सेल्स स्टाफ 21,600. चलो अभी बाइफरकेशन. अरे रे 600 मेरे को पसंद आ गया लगता है. 21,600 में लो और खर्चा दिखाना चाहती हूँ और फिर मैं जेब में डालना चाहती हूँ और ऐसा होगा नहीं. यहाँ पाई का हिसाब होता है. किसका हिसाब होता है? कोई गबन नहीं कर सकते हम अकाउंट्स में. हम कोई भी नहीं कुछ भी करेंगे तो हमारा प्रॉब्लम टैली होगा नहीं. ट्रायल बैलेंस टैली है आपका, प्रॉब्लम टैली नहीं है. मतलब क्या है? कुछ तो गड़बड़ है. ओके चलो स्टार्ट करते हैं. 3,600 इन विच रेशियो? 3,600 ऑफिस वाला कौन से रेशियो में? तो ऐसा फट से आंसर आना चाहिए ना. अभी कितना सोच रहे हो? ऑफिस वाला कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो. चलो टाइम 1:2. चलो गेट मी द अमाउंट फटाफट. मुझे ही करना पड़ेगा. कितना? 3,600 इन द रेशियो ऑफ 1:2. मैं करूं? 1,200 and 2,400. ओके एवरीवन. अब मैं ही करूंगी. इसमें टाइम ले रहे हो तुम लोग. ओके एक काम करो, पेन छोड़ दो, पेंसिल छोड़ दो, हाथ छोड़ दो. हाथ भी ऐसे छोड़ दो.
हाँ, सिर्फ कैल्सी आपके हाथ में होना चाहिए, आंखों पे काम कीजिए, और कहीं भी किसी को देखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड और मुझे देखना है, बाजू वाले को तो बिल्कुल भी देखना नहीं है। और ऐसे ही हंसी आए तो मेरे को देख के ही कर लेना तुम लोग, ठीक है? मेरे को देख के कर लेना, बाजू वाले को देख के नहीं। अगर ऐसा तो उसकी तरफ नजर जाए, फिर आप लोग ऐसे देखते हो फिर ही करते ना, तो मुझे ऐसे देखा ही कर लेना तुम, ठीक है? समझे? अब यहाँ पे ध्यान, आंसर तो दो कम से कम, मैं सिर्फ गला फाड़ रही हूँ, तुम लोग आंसर तो दो, कैलकुलेशन तो दो, ओके? लैक ऑफ अटेंशन क्या था, कौन सा विटामिन? B12। चलो आता आपण आलो आहोत ऑफिस रेंटवर. ऑफिस रेंटवर पण आपण काहीतरी लिहिलेलं आहे. काय लिहिलेलं आहे कि ऑफिस रेंट वॉज 40,000 पर एनम. अब फिर से जैसे ही ऑफिस रेंट में इतना सारा इंफॉर्मेशन आया, हमको क्या करना है? इसका हाँ इसका रह गया 21,000 का क्या करेंगे? सेल्स रेशियो. बोलो सेल्स कितना? रेशियो क्या है? 3:5. चलो बताओ, अब तुम लोग बताओ क्या? बोल नहीं, बोल क्रिजल. 6,000. ओके एंड 15,000. चलो वेरी गुड, परफेक्ट है. चलो नेक्स्ट, ऑफिस रेंट हैव वर्किंग नोट. व्हाई? मोर इंफॉर्मेशन, सो वी आर सपोज टू फाइंड आउट वर्किंग नोट. हाउ मच इज फॉर हाउ मच. सो आई एम राइटिंग हियर, दिस इज डन. नहीं मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. लास्ट वर्किंग नोट है ना, यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ. वर्किंग नोट 4 क्या रहेगा? नाम बोलो वर्किंग नोट 4 का. ऑफिस रेंट. चलो ऑफिस रेंट के बारे में उन्होंने क्या बोला है कि प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड के पहले नहीं, क्या लिखा है? ऑफिस रेंट वाज 42,000 पर एनम. इट बिकम 54,000 पर एनम फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस. पहले वो कितना था? 40,000. फिर बिजनेस कमेंसमेंट मतलब अपना इनकॉर्पोरेशन के बाद वो कितना बन गया? 54,000. टोटल कितना है पहले ऑफिस रेंट बताओ? 48,000. ओके 48,000 में सबसे पहले वो प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड में कितना था? प्री के पीरियड में कितना बोला उन्होंने? प्री इनकॉर्पोरेशन कितने महीने? 4 मंथ. तभी वो कितना पर एनम था? पर एनम क्या था? 40,000 पर एनम. एनम मतलब क्या? पर ईयर. पर एनम मतलब क्या? पर ईयर. तो एक महीने का कितना होगा? ये समझा? 3,600 ना, डिवाइड बाय 12 करो. 40,000 पर ईयर पर एनम, तो पर मंथ कितना होगा? अरे बापा 40,000. अगर मैंने गलत लिखा है तो मुझे आंसर दो. 40,000 पर एनम मतलब पर ईयर, तो मंथली कितना होगा? 3.5 होगा. ओके तो मैंने गलत लिखा तो मुझे करेक्ट करो. ये 3,500. ओके मैंने आपको इसलिए ही दिया कि आप करेक्ट करो, और तुम लोग हाँ ही कर रहे हो. Why I am writing कि you will change, ask me to change. No miss, 3,500 आता है. कोई बोला? नहीं बोला, बहुत टाइम लिया. हाँ सब एग्री. एक हाँ इसने सिर्फ बोला, शशांक ने सिर्फ बोला 3,500. 3,500 पर महीने का. कितने महीने का? पर ईच मंथ. तो 4 महीने का कितना होगा? कितना होगा? 4 मंथ मतलब 3,500 इंटू 4. हाउ मच इट विल कम? 14,000. ये किस में जाएगा? प्री में. ओके टोटल कितना था? चलो फिर से यहाँ पे हम एरो करेंगे. 48,000 प्री कितना? 14,000. तो बैलेंस किस में जाएगा? पोस्ट कितना? 34,000. इज इट क्लियर एवरीवन? सिंपल. बाकी का कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं कि कितना था क्या था, फिर 5,400 की सबसे पर मंथ क्या होता है, वो करने की जरूरत भी नहीं. अगर 14,000 प्री में जा रहा है तो बैलेंस किस में जाएगा? सिंपल. ओके सो शैल वी राइट दिस? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछो ना. फिर वो इन्फॉर्मेशन का क्यों यूज नहीं हुआ? ये 5,400 54,000 पर एनम है बाद के पीरियड का, वो इन्फॉर्मेशन क्यों यूज नहीं हुआ? ऐसा पूछो. हाँ वो इन्फॉर्मेशन अच्छे से पूछो. मिस वो 54,000 पर एनम वाला इन्फॉर्मेशन क्यों यूज नहीं हुआ? बोलो. अच्छा क्यों बोलो, क्यों यूज नहीं हुआ? हाँ तो मैं आंसर देती हूँ. सुनो यहाँ पर हमारे पास टोटल रेंट कितना था? 48,000. या तो मैं डायरेक्टली मंथ वाइज करूं, मंथ वाइज इसका 3,600 3,600 3,600 एंड 3,600 ऐसे लिख के मैं प्री में डालू. 3,600 करेक्ट लिखा है मैंने. कितना है? 5,000. 3,500. सो दिस 3,500 3,500 3,500 3,500 करूं, और फिर 54,000 के हिसाब से 54,000 के हिसाब से पर मंथ कितना आएगा? कैलकुलेट. 54,000 से पर ईयर है 54,000 का पर ईयर, तो पर मंथ कितना आएगा? 4,000
4,500. ये कितनी बार लिखूंगी मैं? 8 टाइम्स. हाउ मेनी टाइम्स? 8 टाइम्स. सो बाय 8 टाइम्स हाउ मेनी मंथ्स आर देयर? रुको ना शांत, मैं इस पे आती हूँ, इस पे आती हूँ. 4,500 कितनी टाइम्स? 8 टाइम्स, राइट. और फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो. लेकिन हमारा टोटल रेंट तो कितना है? 48,000 है. इतना सब सर फोड़ने के हिसाब से मैंने सिर्फ क्या करना है, अगर मेरे पास 2 है बक्से, एक में गेहूं है तो दूसरे में क्या रहेगा? चावल. 2 ही है, मैं मुझे बोला गया मेरे पास 2 ही चीजें होगी, 2 ही टाइप के फूड ग्रेन्स है, गेहूं और चावल. तो एक डब्बा गेहूं का है तो दूसरा डब्बा किसका होगा? तो सेम है. मुझे इस अमाउंट में से प्री का पीरियड प्री का आंसर मिल गया, तो पोस्ट का आंसर, बाकी का बैलेंस किसका होगा? पोस्ट का. मल्टीप्लाई करने के बाद ज्यादा आंसर आ रहा है, मतलब हमने कुछ महीने का पे किया नहीं. ओके, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग दैट, आई एम जस्ट यूजिंग दिस. ये किस में चला जाएगा? पोस्ट में. ओके, बैलेंस किस में चला जाएगा? पोस्ट में. इज इट क्लियर? इसीलिए मैंने वो इन्फॉर्मेशन यूज किया नहीं, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन यूज करने के बाद भी मुझे वापस अलग आंसर आएगा और इट इज नॉट रिक्वायर्ड. अगर ये प्री का है तो बैलेंस किसका हो जाएगा? पोस्ट का. चलो स्टार्ट करते हैं. क्या लिखना है यहाँ पर हमको? ऑफिस रेंट. यहाँ पे मैं एरो करूँ, मतलब नया नया हेड है. ऑफिस रेंट. चलो हाउ मच? टोटल कितना है? 48,000. यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पेसिफिक. वर्किंग नोट कौन सा है? 4. चलो अमाउंट लिखो 14,000 एंड 34,000. डन एवरीवन. उस महीने में हमने 34,000. बराबर है क्या आंसर? कुछ कंफ्यूजन है इसमें आपको? क्या कंफ्यूजन है बताओ? कुछ कंफ्यूजन है? नहीं ना? क्या पता उन्होंने ये जो बाद में उन्होंने नहीं दिया हो या डिस्काउंट मांगा हो, इसलिए अमाउंट नहीं आ रहा है. हमको तो जो अमाउंट है उससे एक्सपेंसेस 48,000 ही दिया है ना, तो 48,000 में हमने प्री का निकाला, तो बाकी का किसका होगा? पोस्ट का. चाहे वो कौन से भी रेशियो में रहे, कैसे भी पर मंथ रहे. दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इन्फॉर्मेशन. ओके चलो नेक्स्ट, फटाफट खत्म करना है प्रॉब्लम. सेल्समैन कमीशन बहुत इजी. कौन से रेशियो में जाएगा? चलो फटाफट लिख देती हूँ मैं. सेल्समैन कमीशन. चलो अमाउंट बोलो फटाफट. अमाउंट भी नहीं बोलेंगे. 24,500. चलो कौन सा रेशियो में? सेल्स. सेल्स रेशियो में जाएगा. बोलो टोटल अमाउंट बोलो, डिवाइड करो. 7,000. चलो डन. अभी इसका क्या बचा? सिर्फ अभी क्या बचा? सिर्फ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन में यहाँ पे लिखती हूँ, फिर अपना वर्किंग नोट बनाते हैं उसका. ठीक है, उसमें भी इंफॉर्मेशन है. डेप्रिसिएशन अमाउंट, टोटल अमाउंट कितना है? 10,500. चलो टोटल अमाउंट 10,500 है. अब इसके बारे में भी उन्होंने कुछ बोला है. दे हैव सेड, अभी प्लेस खत्म हो गया, मुझे कोई तो एक चीज रब करना पड़ेगा. टाइम रेशियो रब कर दूं. चलो चलो टाइम, यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे हो जाएगा क्या? हाँ यहाँ पे हो जाएगा. चलो क्या बोला है डेप्रिसिएशन के हिसाब से? व्हाट दे सेड? अरे डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स 3,000 फॉर द असेट्स एक्वायर्ड इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन. टोटल डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखेंगे. वर्किंग नोट 5. एवरीवन पेड इंजीनियर. अभी लेक्चर खत्म हो जाएगा, आई वांट टू फिनिश. डेप्रिसिएशन कितना है टोटल? क्वेश्चन में देखो कितना डेप्रिसिएशन है. कितना है डेप्रिसिएशन? 10,500. उसमें से उन्होंने क्या बोला? एरो. 3,000 किसके लिए है? पोस्ट के लिए. 3,000 स्पेसिफिकली फॉर पोस्ट. फॉर पोस्ट. ठीक है, दिख रहा है ना? दिख रहा है कैमरे में? ओके ओके. तो बाकी का कितना बच गया? 7,500. 7,500 कौन सा रेशियो में जाएगा? डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाना चाहिए? टाइम रेशियो. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सिर्फ 3,000 है वो पोस्ट को है, बाकी का कौन से रेशियो में जाना चाहिए? टाइम रेशियो. सो आई एम राइटिंग हियर टाइम रेशियो. अब डिवीजन में वहां पे क्लास उसमें बताऊंगी. डिवीजन आई विल शो दैट इन द स्टेटमेंट. ओके एवरीवन. सो आई एम राइटिंग हियर डेप्रिसिएशन. पहला यहाँ पे एक मिनट, डेप्रिसिएशन में यहाँ पे पहले मैं टोटल में से 3,000 एक्स कर दूं. 3,000 किसको बिलोंग करता है? स्पेसिफिकली पोस्ट. सो इट विल गो इन पोस्ट. एड बाकी का डेप्रिसिएशन 10,000, 7,500. दैट विल गो इन विच रेशियो? टाइम रेशियो. चलो करो टाइम रेशियो में. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टाइम? टाइम रेशियो क्या है? 1:2. कितना आएगा? 5,000. चलो डन एवरीवन. ओके हो गया. सारा एक्सपेंसेस डन. टोटल करेंगे.
खत्म करना है ना तो बेल बच जाएगा और फिर वापस रह जाएगा आधा आधा प्रॉब्लम। कितना मिनट बाकी है? 2 आवर्स 20 मिनट बाकी है। हाँ तो हो जाएगा, चलो तो फिर घाई नहीं करती हूँ। ओके, फिर 10,500 का 3,000 कौन से स्पेसिफिकली पोस्ट में जाएगा? 7,500 कौन से रेशियो में? टाइम रेशियो में। 3,000 क्यों स्पेसिफिकली जाएगा पोस्ट में? बोलो क्यों, पूछो। क्योंकि स्पेसिफिकली बोला है उन्होंने कि ये 3,000 जो है वो पोस्ट का ही है, तो पहले मैं निकाल लूंगी और बाकी का जो बच गया। अभी फॉर एग्जांपल मेरे घर पे मेहमान आया है और मेरे 3 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 3। अज्यूम मेरे 3 बच्चे हैं और मेहमान बोल के गए, मुझे देके गए 300 रुपया। कितना देके गया है? 300। उसमें से उन्होंने बोला है 200 जो है 3 बच्चे का सोनू, मोनू और टोनू। ओके, सोनू मोनू टोनू है, उसमें उन्होंने बोला है कि भाई 300 रुपये मैं दे रहा हूँ लेकिन सोनू को 200 रुपये देना। कितना देना? सोनू को 200 रुपये। तो मैं क्या करूंगी? 300 में से पहले 200 रुपये किसको दूंगी? सोनू को। और बाकी का 100 रुपये क्या करूंगी? डिवाइड करूंगी, 50-50 दोनों को दूंगी, राइट। सेम वे अगर आपके पास डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट दिया है, उसमें से बोला है कि सिर्फ पोस्ट को इतना देना है, तो पहले वो निकाल के मैं सिर्फ किसको दूंगी? पोस्ट को, और फिर बाकी का क्या करूंगी? टाइम रेशियो में। इज इट क्लियर? सोनू मोनू टोनू हो गया सबको? हाँ, इसलिए मैंने ये सब किया। डन ऑल द एक्सपेंसेस। चलो टोटल करेंगे कि मैं ही करूं? कैलसी है आपके पास? उंगलियां है? हाँ है। प्लीज जरा टोटल करून द्या। मी करू शकते पण टाइम कन्झ्युमिंग आहे, मग आपल्याला दुसरं लेक्चर कडे पण जायचं आहे म्हणून। चला चला चला। हाय बप्पा, आप करोगे कि नहीं? चलो बोलो। टोटल सिर्फ एक्सपेंसेस का करना बच्चा लोग, सिर्फ मुझे एक्सपेंसेस का चाहिए पहले, फिर इसमें से लेस करेंगे। ओके हो? चलो चलो मुझे करने दो, तुम लोग बहुत टाइम पास करते हो। 0 यस। हाउ टू से द अमाउंट? 2,76,000 76। अरे क्या कितना? चलो मैं करती, छोड़ो तुम लोग बहुत टाइम पास लगो। 5 5 और 6 और तो 6 जाएगा। 6 ऊपर गया 1 5 5 10 13 14 15 15 19 19 और 3 22 22 और 8 22 29 29 22 और 8 30 37 7 2,87,000। कितना जल्दी आंसर दिया? 2,87,600। चलो इसका टोटल करो। 1,10,700। नेक्स्ट का 1,76,000। चलो डन एवरीवन। ये एक्सपेंसेस है। अब एक्सपेंसेस किस में से माइनस करोगे? इनकम में से माइनस करोगे, राइट। तो आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट या लॉस। एक सेकंड। चलो ये दिस विल बी और बी, दिस विल बी और ए, इनकम विल बी और ए एंड दिस विल बी और, सो नेट प्रॉफिट और लॉस। चलो नेट प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है? ए माइनस बी करो। यहाँ पे कितना आ रहा है? 62,400। और यहाँ पर नेट लॉस आ रहा है ना, सो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। चलो कौन सा है? 10,700 लॉस आ रहा है, राइट। नेगेटिव में जा रहा है ना, अरे कैलकुलेटर लेके माइनस करने बोला है। 10,700 लॉस, सो आई एम पुटिंग इन द ब्रैकेट। चलो नेक्स्ट 73,000 पॉजिटिव है ना। चलो चलो ये आपका नेट प्रॉफिट यहाँ पर है। यहाँ पे जो नेगेटिव में फिगर आ वो क्या है? नेट लॉस। इसको प्रॉपर्ली लिख देती हूँ ताकि आपको दिखाई दे। 10,700 दिस विल बी योर नेट लॉस और ये आपका नेट प्रॉफिट। चलो लास्ट टाइम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कि अगर प्री पीरियड का जो प्रॉफिट है, प्री पीरियड का प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल रिजर्व। और प्री पीरियड का लॉस क्या कहलाता है? गुडविल। याद आया कुछ? प्री पीरियड का प्रॉफिट कैपिटल रिजर्व, प्री पीरियड का लॉस गुडविल।
ओके, सो दिस विल गो इन गुडविल, और बाकी का पोस्ट ऑफ तो हमेशा किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पे आपको नोट लिखना है कि नेट लॉस फॉर द प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड विल बी ट्रीटेड एज गुडविल एंड net profit as per post incorporation period will be transferred to profit and loss account. Okay, is it clear? Sure. So I'm writing here the note. Note, net loss of pre-incorporation period will be transferred to goodwill account. Will be transferred to which account? Goodwill account. Because we are paying them or we are giving them extra. So that's why it is goodwill account. And next is net profit of post incorporation period will be transferred to which account? Profit and loss. क्योंकि वो कंपनी का प्रॉफिट है। ओके, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ओके, चलो, सो दिस इज डन, गिव मी 5 minutes। सो